گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان کا. السلام علیکم جی. آج آپ دیکھیں گے جی فار خریدا کا خصوصی پروگرام. میں اس وقت اسلام آباد میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بلڈنگز این سی او سی، میرے پیچھے آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. آج ہم این سی او سی پہ موجود ہیں. یہاں سے آج ہم اسپیشل پروگرام کریں گے. میڈیا کو آج یہاں پہ بریفنگ کے لیے بلوایا گیا ہے. سینئر جرنلسٹ کو ان کو بتایا جائے گا کہ کرونا وائرس کی سچویشن کتنی خطرناک ہے، کتنی خوفناک ہو رہی ہے اور کتنی خراب ہو سکتی ہے مزید اگر احتیاط نہ کی گئی. تو آج کے اس اسپیشل پروگرام سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی ملک بھر میں اس وقت سچویشن کیا ہے. آپ کی بات کروائیں گے اسد عمر صاحب سے، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے اور باقی این سی او سی کے کچھ آفیشیل سے، اور آپ تک پہنچائیں گے لمحہ بلمحہ صورتحال اور عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بڑا خطرہ اس وائرس کی سیکنڈ ویو سے پھیل رہا ہے اور کس طرح ہم سب کو احتیاط کرنی ہے. آئیے گا. اور اب میں آپ کو این سی او سی کی اس مین بلڈنگ کے اندر لے کے چل رہی ہوں جہاں پہ وہ سچویشن روم آئے گا جہاں پہ آج میڈیا کو بریفنگ دی گئی ہے. اور اس این سی او سی کی بلڈنگ میں آنے کے لیے السلام علیکم سر. ظاہر ہے یہاں پہ ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر بہت اچھا ہے سچویشن کہ ایک ٹیمپریچر یہاں پہ چیک ہو رہا ہے اور ایک آگے جا کے خود کار آلہ لگا ہوا ہے جو کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں مین بلڈنگ کے اندر این سی او سی کی تو وہاں پہ خود کار آپ کا ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے. سو آج این سی او سی کی اس بلڈنگ میں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں. یہاں سے وائرس کی سچویشن کے حوالے سے آپ کو بھی بریفنگ پہنچائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح محنت سے یہاں پہ سویلینز پلس ملٹری آفیسرز جو بھی لوگ ہیں مل کے ایک پیج پہ عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم لوگ این سی او سی کی بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں. یہاں پر میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانفرنس روم ہے. دس از دا روم کہ جہاں پر این سی او سی اپنے قیام سے لے کے آج تک پاکستان کے عوام کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے. دس از دا روم. میں کہوں گی کہ میرے کیمرہ مین اس روم کا ایک اوور آل برڈز آئی ویو آپ کو دکھا دیں. یہ وہ کانفرنس روم ہے کہ جہاں سے این سی او سی بیٹھ کے پاکستان کے عوام کی صحت، ان کی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے. پاکستان کی سویلین قیادت اور جو ملٹری آفیسرز اس این سی او سی میں شامل ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن میں جو شامل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دیر میں یہاں پر میڈیا کو بریفنگ بھی دی جائے گی. آج میڈیا کو دعوت دی گئی ہے. پاکستان میں وائرس کے کیسز، سیکنڈ ویو کے کیسز بہت خطرناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج کیسز 3000 سے اوپر ہو گئے ہیں. ڈیتھس 60 تک پہنچ گئی ہیں. پازیٹیوٹی ریٹ 7% سے بھی اوپر جا چکا ہے. اور سچویشن اس وقت پاکستان میں بہت گرم ہے، بہت خطرناک ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ عوام کا رویہ ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا رویہ ہے. نہ تو عوام احتیاط کر رہے ہیں اور نہ ہی سیاستدان. خاص طور پہ اپوزیشن کے کردار کو میں ضرور ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی. آج آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. خدا ان کو صحت دے. تمام قوم کی صحت کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بٹ یہ ایک ریمائنڈر ہے ونس اگین، ویری اسٹرانگ ریمائنڈر کہ کرونا وائرس ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی عوام ہو، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ بڑے بڑے گھروں میں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والا کوئی شخص ہو، چاہے وہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا یا ایک بے گھر شخص ہو. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے بطور ایک فرد اس قوم کے اجتماع کا حصہ ہونے کے حوالے سے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. ماسک پہنیں لازماً.
यहाँ एनसीओसी से मुसलसल जो बार बार मैसेज जा रहा है वो यही है कि जी मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, फासला रखें, इज्तिमाआत में मत जाएं। तो अपोजिशन की खास तौर पे जिम्मेदारी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और असद उमर साहब से सवालात करते हैं। ब्रीफिंग तो उन्होंने हमें दे दी और उस ब्रीफिंग के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से बात करेंगे और एनसीओसी का मजीद एक राउंड अप आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम जैसा एनसीओसी में मौजूद हैं, आज यहाँ पे मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। सिचुएशन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत खतरनाक है। आज केसेस 3000 से भी ऊपर हो गए हैं। डेथ्स डेली 50-60 का फिगर क्रॉस कर रही हैं। पॉजिटिविटी रेट बहुत शदीद बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन का जो गैर संजीदा रवैया है उस पर तो खैर बात करेंगे। बट पाकिस्तान को इस वक्त इमीडिएट कितने बड़े चैलेंज का सामना है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा विफाकी वजीर हैं और एनसीओसी के हेड हैं असद उमर साहब, जिनकी लीडरशिप में एनसीओसी ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और पाकिस्तान में फर्स्ट वेव को कर्टेल और कंटेन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये मास्क की वजह से आपकी आवाज़ इसमें अच्छी आ जाएगी, बट वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एज वेल। असद उमर साहब, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस के हवाले से? देखिए, सूरत हाल तो काफ़ी ज़्यादा संजीदा होती जा रही है। जिस रफ्तार से हमारे हस्पतालों के अंदर जो हमारे कोरोना के मरीज़ हैं उनका इजाफा हो रहा है, खुसूसी तौर पे वो मरीज़ जो ज़रा सीरियस हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अगले कोई 2 हफ्ते के अंदर अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां जून के वस्त में थे, जब आपको याद हो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात थे। तो क्या हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? कोई ऐसी सोच है? देखिए, लॉकडाउन तो हम इस्तेमाल करते हैं, टारगेटेड लॉकडाउन करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का वर्ड जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके भी फैलाव बढ़ता जा रहा है। अब मुकम्मल तौर पे तो लॉकडाउन वो सारी दुनिया ने देखा हो एक नाकाम स्ट्रैटेजी थी, लेकिन जिस तरीके से पहले हमने इलाकों को बंद किया जहां पर कोरोना ज़्यादा था, वो बिल्कुल वो ज़रूर आपको देखने में नज़र आएगा और वो शुरू भी हो गया है। और सबसे अहम सवाल, अपोजिशन का रवैया। सर, इस वक्त जल्द से मुसलसल करने के लिए बजिद है अपोजिशन, गवर्नमेंट से एंगेज नहीं कर रही, मैना मानू वाली सिचुएशन है, हट धर्मी की सिचुएशन है, जिसका जो नुकसान है वो ज़ाहिर अवाम पाकिस्तान भुगतेगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी वो खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करेंगे कि बिलावल जल्द सेहतयाब हों, मुकम्मल तौर पर शिफायाब हों। और ये बड़ा अच्छा मौका है बिलावल के लिए भी कि वो अपने तमाम वर्कर्स, अपने तमाम सपोर्टर्स को भी ये पैगाम भेजें और याद दहानी कराएं कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है जिससे अब वो खुद भी गुजर रहे हैं। देखिए, जो सबसे अहम चीज़ है इस बीमारी से दिफा के लिए वो है हमारे रवैयों में तब्दीली, ताकि जो बिल्कुल आसान हिफाजती तदाबीर हैं, फासला रखना है, हाथ नहीं मिलाना है, मास्क पहनना है, जब मौका मिले तो हाथ धो लेने, साबुन से या सैनिटाइजर लगा देना, आसान चीज़ें हैं जिनको हम करके बहुत बड़ी तबाही से बच सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा जब सब पाकिस्तान में इस बात पर यकीन करेंगे कि इसकी ज़रूरत है। जो पहली वेव के अंदर, पहली लहर के अंदर अच्छी चीज़ ये थी कि सब ने यही पैगाम भेजा, चाहे वो सियासी हों, समाजी लीडर्स हों, मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और वही ज़रूरत है आज भी कि तमाम हमारी सियासी, समाजी लीडरशिप, मीडिया यकजुबान होकर आवाम तक ये पैगाम भिजवाए। और जाहिर है कि अगर एक बड़ी तादाद लीडरशिप की आवाम को ये कहेगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे बहुत बड़ी तबाही फैलने का अंदेशा है। सर, अपोजिशन को शिकवा है कि गवर्नमेंट एंगेज नहीं कर रही, स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी को वो मानते नहीं हैं, कहते हैं स्पीकर जानिबदार हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद हमसे राब्ता करें। क्या आप खुद बजाते खुद एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से किसी वक्त अपोजिशन को एंगेज कर सकते हैं? क्योंकि सर ये जल्द से बंद होने चाहिए, चाहे इसका कोई डेटा हो या ना हो, लेकिन ये तो सबको पता है ना कि जहां पर भी लोग इकट्ठे होंगे कोरोना जरूर फैलेगा। जी, देखें,
वजीर आजम तो खुद भी इंगेज करते हैं, एक एनसीसी का प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके अंदर तमाम वज़राए आला मौजूद हैं, उसके अंदर पीपल्स पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन है। तो 4 बड़ी पार्टियों की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है और ज़ाहिर है हमारा जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके अंदर MQM भी है, GDA भी है, PMLQ भी है, तो तमाम बड़ी पार्टीज तो वहां पर रिप्रेजेंट होती हैं एनसीसी में। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई थी पार्लियामान की, बड़ी ताकतवर कमेटी थी, उसके अंदर बड़े बड़े लीडर्स, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, हसन इकबाल आते थे, उसके अंदर राजा परवेज अशरफ, तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उस कमेटी के मेंबर हैं और ये 4 कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। तो ये कल 5वीं मीटिंग थी जिस कमेटी को वो नहीं मान रहे, तो बड़ी अफसोसनाक बात थी। और स्पीकर से ज्यादा तो जमहूरियत के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कोई न्यूट्रल ओहदा नहीं होता और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था और वहां पे कोई सियासत तो बात करने के लिए हमने बुलाया नहीं था। हमने इसलिए तो नहीं बुलाया था कि वो आके हमें ये कहें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यकजुबान हो के एक पैगाम दिया जाए पाकिस्तान को कि ये वबा जिससे अल्लाह ताला ने पहले हमें करम किया था, निस्बतन महफूज रखा था, उससे कैसे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपके पास टाइम बहुत कम है बट इस टाइम में भी आपने वक्त दिया। एनसीओसी यहाँ से हम आपको मजीद सिचुएशनल पहुंचाएंगे कि सूरत हाल है क्या और अवाम को और खासतौर पे अपोजिशन को अपने जलसों के हवाले से क्या जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SAPM वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड। हम इनको अपने स्टूडियोज़ में दावत देते हैं, ये वहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और आज जब मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए तो मैंने इनसे कहा कि इट्स गुड टू सी यू इन योर डेन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या गुड टू सी यू इन योर डेन सर। यस डेन फॉर मेनी मंथ्स नाउ। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा यहाँ पे काम होता रहा है। NCOC का ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान ने मिरेकलसली मौजज़ाना तौर पे फर्स्ट वेव को शिकस्त दी और अब सेकंड वेव के लिए बैटल कर रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके। लेकिन सर कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, बिकॉज सेकंड वेव बहुत सीरियस होती जा रही है और लोग बिल्कुल भी SOPs फॉलो नहीं कर रहे, बहुत वायलेशंस हो रही हैं। बिल्कुल जी, ख़तरनाक तो बिल्कुल है और जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ जा सकती है या कहाँ जा रही है। अगर आज किसी को ये ख्याल या गलतफहमी है भी कि ये सिचुएशन बेहतर कंट्रोल में है इस वक्त, तो ये देखना है कि ये जो अदाद शुमार हैं ये किस तरफ को पॉइंट करते हैं, ये इशारा कहाँ का कर रहे हैं और ये इशारा ऊपर या आगे जाने का कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एहतियात को छोड़ना हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हम पहली वेव से शुक्र है बेहतर तौर पर निकले, लेकिन उसमें हमारे एक्शंस का ताल्लुक था, हमें कुदरत ने रिवॉर्ड किया, हमें बेहतर एक रिजल्ट मिला, शुक्र है। मगर वो हमारे उसमें काविशें, हमारी एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट सारे मुल्क की शामिल थी। अब कुछ ऐसे लगता है कि ये एक मसला सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी का बन गया है कि हम उस चीज़ को, इस रिस्क को, इस ख़तरे को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है और ये जो गलत परसेप्शन है ये हमें इससे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में डालेगी। और अनफॉर्चुनेटली इस मामले में बहुत ही सोचने की बात है, आप इसके बारे में रिएक्ट बाद में नहीं कर सकते। बीमारी 5-6 दिन बाद अपना असर दिखाती है। अगर नंबर आज यहाँ है और 5 दिन बाद यहाँ है तो वो आज की सूरत हाल को की अक्कासी कर रहा है। सो आज आप एफर्ट करोगे तो फिर जाके 5 दिन बाद की या हफ्ते बाद की सिचुएशन बेहतर होगी। तो इन अदर वर्ड्स इसमें पसज इवेंट एक्ट करना इतना अक्लमंदाना नहीं, वक्त से पहले कर लें तो बेहतर। वो जो कहते हैं ना कि जनरली एहतियात इलाज से बेहतर है, वो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बहुत सी इस तरह की वो हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त की प्रिवेंशन है ना, आज इतनी सी जो आउंस ऑफ प्रिवेंशन है कल को ढेर सारे नुकसान से हमें बचा सकती है। और मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि हम सब तक पहुँचाएँ। आपने खुद ही फरमाया, अच्छे भली हमारे वो लोग जिनको कि इस मामले से अवेयर होना चाहिए, तालीम याफ्ता भी हैं, अवेयर भी हैं, उसके बावजूद कई दफ़ा ये दिखता है कि वो एहतियात को बालाए ताक रख के अब कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं। अगर आपको बीमारी हो भी चुकी है तो भी एहतियात ज़रूरी है। अगर आपका ख्याल है कि आप किसी वजह से उससे अभी तक बचे रहे हैं तो इस गलत फहमी में मत रहें। हो सकता है आपकी एहतियात आज तक आपको बचाती रही और आज की बद एहतियाती आपको फिर ख़तरे में डाल देगी।
ہم میں سے کوئی بھی اس سے امیون نہیں ہے. ہر ایک کو یہ رسک تو ہے بیماری ہونے کا, تو سب کو ہی چاہیے. سر آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کو کرونا وائرس ہو چکا ہے اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں, بٹ اس کے باوجود اپوزیشن جلد سے جلوس کر رہی ہے, جو کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کی تو پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے, بٹ سر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ایک تو جی اللہ کرے وہ صحتیاب ہوں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ ایک سینئر ترین پولیٹیکل لیڈر بھی ہوں تو بھی آپ ایٹ رسک ہیں, آپ عام شہری ہیں تو بھی آپ ایٹ رسک ہیں, آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں تو شاید آپ کا اور بھی زیادہ رسک ہے. تو ہم سب کو یہ ماسک کا استعمال, ہاتھوں کو صاف رکھنے کا, تھوڑا سا گیپ رکھنے کا, اور جہاں ہجوم ہے اس کو اوائڈ کریں. اور ہجوم کی تمام ڈیفینیشنز اس میں چاہے وہ آپ اکٹھے کس وجہ سے ہوئے ہیں, اس سے وائرس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وائرس نے یہ دیکھ کے نہیں آنا کہ آپ پولیٹیکل جلسے میں ہیں, آپ شادی میں ہیں, آپ ریسٹورانٹ میں ہیں, آپ پارٹی میں ہیں, آپ کسی اور وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور خصوصاً اگر بند انوائرمنٹ میں ہیں اور بہت قریب ہیں اور آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, تو پھر تو وہ جو رسک ہے وہ اوپر سے اوپر چلتا جاتا ہے. تو رسک کو توڑنے کے وہی طریقے ہیں, ہجوم کو اوائڈ کریں, ماسک پہن لیں, تھوڑا سا گیپ رکھیں, تو اوپر سے رسک نیچے آ جاتا ہے. دیٹس اے ویری سمپل فارمولا, جو کہ اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی جس لیول پہ آبزرو کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. سر اس میں اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے, ناٹ آسکنگ یو دا پولیٹیکل کوشچن, صرف ایک بیسک سینس جو ان کی ہے کہ جی جلد سے جلوس تو ہر کوئی کر رہا ہے, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, میرج ہالز بھی کھلے ہیں, چاہے اندر بند ہو گئے لیکن باہر تو ہے, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, مساجد ہیں, باقی ہر قسم کا اجتماع ہو رہا ہے. سو سر ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ کمپیریزن کتنا خطرناک اور خوفناک ہے, اور کیا اپوزیشن کا یہ جو ان کا پوائنٹ ہے, جو ان کا کرٹیک ہے, کیا یہ ویلڈ ہے؟ دیکھیے یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کو آپ منطقی طور پہ دیکھیں تو بڑی سادی بات ہے. کسی بھی ایپیڈیمک میں رسک کو آپ زیرو نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ سب ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور چند ہفتوں کے لیے بالکل سب کچھ بند کر دیا جائے. ایک لائک دا چائنیز ماڈل, جیسے چائنیز ماڈل, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھیں ایک محدود عرصے کے لیے ہی وہ کر سکے. اب اگر آپ نے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اس کو عملی طور پہ جامع پہنانا ہے, تو پھر کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں رسک کو کم کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے شادی کی مثال دی, شادی ہم نے کہا جی باہر کر لیں, لوگوں کی گیسٹ کی تعداد کم کر لیں, ادھر ایس او پیز کر لیں. اگر آپ وہ کرتے ہیں تو رسک زیرو نہیں ہوتا, لیکن اوپر سے لے کے زمین 100 گنا کا, 10 گنا کا, 20 گنا کا فرق پڑ جاتا ہے رسک میں. اب یہی معاملہ ان باقی ایکٹیویٹیز کا ہے. تمام ایکٹیویٹی میں سمجھتا ہوں جی جو بھی کوئی جلسہ کر رہا ہے جس پارٹی سے بھی ہو, ہم تو لگاتار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ارسپیکٹو ہے کسی پارٹی کی ایفیلیشن سے. اور میں دیکھیں ذاتی طور پہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایون ایز پارٹ آف دس گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جمہوری آواز میں یقین رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی پروٹیسٹ کے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ اس وقت موقع کچھ ایسا ہے کہ ہم سب اگر اپنی مجموعی اس ذمہ داری کو سمجھ لیں, ایز سٹیزنز, ایز لیڈرز, ایز تھنکرز, ڈیسیجن میکرز, ہر ایک کے پاس چھوٹی چھوٹی ذمہ داری تو ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس رسک کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا کاروبار زندگی ہے اس ملک کا, اس کو بھی ہم نے چلانا ہے. تو اب ساری دکانوں کو بند کر دینا یا ساری ایکٹیویٹیز کو بند کر دینا مناسب نہیں. آپ دیکھتے ہو رسک سب سے زیادہ کہاں ہے, اسی لیے ہم نے اسکولوں پہ توجہ دی. اسکولوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اسکول اور کالج میں ملا کے مجموعی طور پہ 50 ملین 5 کروڑ بچے یا نوجوان شامل ہیں. پاکستان ایک ینگ ملک ہے نا, ہم سب کہتے ہیں ہمارا پاپولیشن پیرامڈ ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان زیادہ ہیں. باقی ملکوں کی نسبت جو پروپورشن ہے ہماری پاپولیشن کا جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہے وہ کروڑوں میں ہے. ایک بات. دوسرا یہ تھا کہ ہر روز وہ اسکول جا رہے ہیں, ہفتے میں 5 یا 6 دن کئی گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں. ہمارے بہت سے جو دیہی اسکول ہیں یا ایون شہروں میں جو ہمارے کچھ اسکول ہیں جہاں انتظامات اتنے کھلے نہیں ہیں, ٹائٹ کلاس رومز ہیں, بچے بہت سارے ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, پھر لاکھوں ٹیچرز ہیں, پھر وہ گھر جاتے ہیں. تو اس میسو ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے, اس کے ذریعے بیماری کو روکنے کے لیے ہم نے کہا کہ چلیں یہ لرننگ فرام ہوم کر دیں, ارلی ویکیشن کر دیں یا ویکیشنز کو 10-12 دن کا کر دیں. سر یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی, بٹ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سوال میں نے آپ سے میڈیا بریفنگ کے دوران بھی کیا تھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں میسج کر رہے ہیں, مجھے میسج کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کہ جی آپ نے ریگولر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تو بند کر دیے, بٹ جو ایم ڈی کیٹ کے پیپرز ہو رہے ہیں وہاں پہ 1.5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ ہے جو
कि ज़ाहिर है फिर अपनी फैमिलीज के पास भी जाएगा, तो उसको क्यों आप वल्नरेबल कर रहे हैं? वो आप रिजल्ट्स के वो एग्जाम्स आप पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी बड़ी सादी सी मंतक है। देखें, वो एग्जाम्स जिनका एक करिकुलम तय करने से और उसके एंड ऑफ करिकुलम पे एग्जाम से ताल्लुक था, यानी जो इवैल्यूएशन के एग्जाम्स थे, कोर्स वर्क मुकम्मल करने के बाद नेचुरली वो तो आगे चले जाएंगे, जब कोर्स वर्क नहीं हो रहा तो वो भी आगे चले जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे एंट्रेंस क्वालिफाइंग एग्जाम्स दाखिले के लिए या मुलाजमत के लिए, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम समझते हैं कि बहुत बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सकता है। आपने एमडी कैट का जिक्र किया, चलें इसे ही ले लेते हैं। देखिए, वहाँ 5 करोड़ बच्चा मैंने मेंशन किया जाता है स्कूलों में, हर रोज जाता है, 8 घंटे जाता है और लगातार एवरी सिंगल, ये नहीं है कि आज हो गया तो खत्म हो गया, वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। अगर आप उसके घंटे गिने तो वो तो करोड़ों में चले जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बरक्स और वहाँ मैंने आपको बताया बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और जो 2 लाख स्कूल हैं या इदारे हैं, अब उन सारों में एनफोर्स करना ये इतना आसान नहीं। इसके बरक्स एमडी कैट ने 198 200 सेंटर्स में होना है, टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में होना है। उन्होंने सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी है ताकि स्पेसिंग डिस्टेंसेस हो चुके हैं। ये सारे समझदार उम्र के बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो मास्क पहन ले 2.5-3 घंटे के एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। और ये वन टाइम एक्टिविटी है। किसी भी एक्टिविटी से देखें, आप और मैं यहाँ बैठे, हमने मास्क पहन लिया, हमारा रिस्क 0 के करीब चला जाता है, लेकिन 0 नहीं होता। सो किसी भी एक्टिविटी में अगर किसी की ये ख्याल है कि रिस्क 0 हो जाएगा, वो नहीं। हम तो जिंदगी में नॉर्मल भी तो चल फिर रहे हैं ना। अब इस रिस्क को कम कैसे करना? एहतियात, डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल, और वो इन कंटेन्ड सेंटर्स में, इन लिमिटेड सेंटर्स में बहुत इजीली एनफोर्स भी हो सकता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तो डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, ये क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? तो ये बिल्कुल अडॉप्ट करें। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी बाहर भी रश होता है, तो फिर उसको मैनेज करना है। हमने ये देखना है कि अगर एक बच्चा आमतौर पे 2 पेरेंट्स के साथ आता है, तो इस इम्तिहान के लिए एक के साथ आ जाए, बाहर भी थोड़ा फासला रख लें, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। अब बात यह है कि हमने सारे कारोबार ज़िंदगी को, अपने मुल्क के तमाम निज़ाम को डेड स्टॉप नहीं कर सकते, हमने रिस्क को बैलेंस करना है। तो कंपेयर टू द होल स्कूल सेक्टर, इस मामले का रिस्क जो है रिलेटिवली बहुत थोड़ा है और उसको फर्दर कम किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि आज आई सपोज कि 5 बजे आप लोगों की कोई वैक्सीन के हवाले से मीटिंग भी है जिस टास्क फोर्स को आप हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन आ रही है सर? चाइनीज, अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, ऑक्सफोर्ड वाली कौन सी वैक्सीन आ रही है? कितने पैसे हमने रख दिए और कब तक आ रही है वैक्सीन, और किस किस को लगेगी वैक्सीन? अच्छा जी, पैसों का सबसे इस प्रोसेस को समझ लीजिए। कई हफ्ते पहले, कई महीने पहले बल्कि ये सारा जो प्रोसेस है शुरू हो गया था। इसमें सबसे पहले तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। ये देखा जाए कि जो एदाद शुमार दुनिया भर से आ रहे हैं, देखें हर कोई अपनी वैक्सीन के बारे में क्लेम कर सकता है, या ये ख्याल कर सकता है, या ये न्यूज़ दे सकता है कि ये अच्छी है, वो अच्छी है। तो हमें चाहिए था कि हम एक्सपर्ट्स पे रिलाई करें, इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी। वो तमाम चीज़ों को रियल टाइम में देख के उन्होंने अपनी एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी कि ये चंद वैक्सीन हैं जो वो समझते हैं कि अच्छी सक्सेस की उम्मीद रखती हैं। क्योंकि देखिए फाइनल रिजल्ट्स तो अभी किसी के भी नहीं आए। जिन्होंने रिलीज भी किए हैं 2-3 ने, उन्होंने अपने इब्तदाई रिजल्ट्स का जिक्र किया, लेकिन आपने उनका डेटा देखना था, उनकी साइंस देखनी थी, मेथडोलॉजी अच्छी हुई थी कि नहीं, ट्रायल का डिज़ाइन अच्छा था कि नहीं। इस चीज़ के लिए हर कोई तो नहीं कर सकता, एक्सपर्ट्स बैठाए। उन्होंने आपको एक लिस्ट दे दी 6-8 वैक्सीन की कि भाई ये हैं जो आप कंसिडर करें कि ये लाइकली कैंडिडेट्स हैं। सर वो कौन कौन सी वैक्सीन है? इस वक्त बताना मुनासिब इसलिए नहीं कि अभी उस पर आज डिस्कशन होना है। ठीक, अच्छा, जब वो उन्होंने लिस्ट आपके सामने रख दी, तो अब हमारी जो थी सीनियर कमेटी, जिसमें ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग वाली वो थी, जिसको SAPM हेल्थ ने हेड करना था। अच्छा, अब वो आज मिलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि तमाम हमारी ऑप्शंस हैं क्या। अच्छा, ऑप्शंस में 3 चीज़ों का बहुत अहम जिक्र है। एक, माफ़ कीजिएगा, एक उसकी अफादियत, दूसरा उसकी सेफ्टी, तीसरा रसाई। देखें, वैक्सीन अच्छी भी हो, उसकी अफादियत भी हो, लेकिन हम उस तक रसाई ना हासिल कर सकें किसी लॉजिस्टिक रीज़न की वजह से, किसी कॉस्ट की वजह से, या किसी और जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से, तो वो हमारे किस काम की। तो हमने ये सारे फैक्टर्स को सामने रख के ये फैसला करना है कि वो कौन सी वैक्सीन या वो कौन सी वैक्सीन्स हमारे मुल्क में इस्तेमाल में लाई जाएंगी और किस टाइम टेबल के साथ, और उनके लिए हमें कितने पैसे उनको
دینے پڑیں گے. اب یہ ایک نیگوسیشن ہونی ہے, یہ تھوڑا سا رسکی معاملہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آسان ہے آپ کہو جی ہاں یہ ایک چیز ہے, ہم یہ دوا خریدنے گئے, ایک مستند دوا ہو جو کہ سیٹلڈ ہو, جو کہ 10 سالوں سے کارآمد چل رہی ہے, آپ نے کہا جی یہ لے لی. یہاں ایسا نہیں ہے, یہ نئی چیز ہے اور موونگ ٹارگٹ ہے. تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ججمنٹ والا ڈیسیجن ہوگا اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اور میں سر کب تک آ سکتی ہے پاکستان میں ویکسین, اور پرائیورٹی لسٹ کیا ہوگی ویکسین کے لیے؟ اچھا, ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں جو ارلی پرائیورٹی والی ہے وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اگلے سال کے شروع کے بعد آئے گی. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں پہلا کوارٹر آف 2021 آپ سمجھ لیں, جو پہلی سہ ماہی ہے اس میں اس کی اویلیبلٹی ممکن ہو سکتی ہے, میرا اندازہ ہے. اس میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن پرائیورٹی کیا ہے؟ پرائیورٹی جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی تھی نا, انہوں نے بڑی واضح کر دی. انہوں نے کہا سب سے پہلی پرائیورٹی وہ لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن ورکر ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جن کی عمر ایک سرٹن ایج سے زیادہ ہے, مثال کے طور پہ 60 یا 65 سے. تو ایک وہ جن کو پروٹیکشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم چلتا رہے, اور دوسرا وہ ہمارے سٹیزنز, وہ ہمارے شہری جن کو خدا نہ خواستہ اگر بیماری لگے تو ان کی مورٹیلٹی کا ہائیسٹ رسک ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیگر جو ہیں باقی جنرل پاپولیشن تک بات آئے گی. تو اس کی سیکوینس کچھ اس طرح سے ہوگی, لیکن اس میں ہمیں یہ بھی اچھا ایک اور فیسلٹی ہے جس کو کوویکس بولتے ہیں, جس میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے بھی وہ ویکسین کی خریداری کریں. پھر گاوی ایک الائنس ہے, گلوبل الائنس فار ویکسین انیشیٹو, وہ بھی کلیکٹیولی لو مڈل انکم کنٹریز کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے ایک ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اسٹریٹجیز کا کرے گا, خود سے خریداری کی, فرنٹ لائن کی, پھر جنرل پاپولیشن کی, اور گاوی اور کوویکس سب کے ساتھ مل کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری پاپولیشن انشاءاللہ کور ہوگی. تھینک یو ویری مچ ایس اے پی ایم ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, ونس اگین آپ کے ٹائم کے لیے. آپ کے بہت بزی شیڈیول ہے یہاں پہ جس میں سے ہم نے وقت لیا. تھینک یو ویری مچ سر. اپوزیشن کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے. اب 3-4 دن کے بعد 30 نومبر کو جس طرح اپوزیشن نے ملتان کا جلسہ رکھا ہے, تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو زرداری جس طرح وائرس کا شکار ہو گئے ہیں, تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ NCOC کی اپیلوں کو سنیں, گورنمنٹ کی اپیلوں پر کان دھرے اور جلسے ملتوی کر دیں. اس جگہ پر اس کمرے میں بیٹھ کے جو لوگ بڑی محنت کے ساتھ, بڑی دیانت کے ساتھ, بڑی جانفشانی کے ساتھ دن رات ایک کرتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے عوام کو محفوظ بنایا جا سکے, یہ وہ ایک بڑی میسو اسکرین ہے کہ جہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پر جو سچویشن ہوتی ہے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیلی کے ٹیسٹ ہیں اور جو پازیٹیوٹی کے کیسز ہیں ان کی سلائیڈ اس وقت یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگست کے بعد سے لے کے, یا اگر آپ اس کو کریں 5 اکتوبر کے بعد سے لے کے, ٹرینڈ جو ہے وہ اپورڈ جا رہا ہے, اور آج تک کے یہ کیسز کا رزلٹ ہے. یہ سچویشن ہے میجر سٹیز میں. حیدرآباد اس میں ریڈ ہے, کراچی کی سچویشن اس وقت بہت خراب ہے, مظفر آباد کی سچویشن بہت خراب ہے, اسلام آباد بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس وقت, باوجود اس کے کہ اسلام آباد میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پورے پاکستان میں جو ٹیسٹ کی سچویشن ہے اسلام آباد اس میں سب سے بہترین ہے, بٹ اس کے باوجود اسلام آباد سے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ملتان میں 30 نومبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے PDM کا, سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جی. وینٹیلیٹرز 157 اویلیبل ہیں اس وقت ملتان میں, جن میں سے 52% آکوپائڈ ہیں. یہ سوال ہم نے کیا اسد عمر سے جب ہمیں میڈیا بریفنگ دی گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملتان میں وائرس کی صورتحال کم ہو گئی ہے یا ٹھیک ہو گئی ہے, وجہ یہ ہے کہ ملتان میں وینٹیلیٹرز بڑھا دیے گئے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت ملتان میں سب سے زیادہ ریٹ ہے کرونا وائرس کے کیسز کا. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ PDM, اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. میڈیا پرسنز نے بار بار سوال کیا کہ جی جلسوں سے کیا کرونا پھیل رہا ہے, لیکن اس کو سائنٹیفکلی ڈیٹا کے ساتھ پروف کیا جائے. تو بہرحال یہ ایک کامن سینس ہے کہ جہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہوں گے, زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے,
मास्क नहीं पहना होगा, या अगर मास्क भी पहना हो लेकिन जब आप जलसे में खड़े होते हैं तो आपके हाथ एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं, आप हाथ मिला सकते हैं, आपका क्लोज कांटेक्ट हो सकता है किसी ना किसी तरह। सो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्लोज टू 100%, कि आप वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं। जो यहाँ पे NCOC के इस कमरे में जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। खुदा के लिए आवाम से बार बार अपील है, सियासतदानों से हमारी अपील है, NCOC के इस कमरे से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, संजीदगी का मुजाहरा करें, संजीदगी के साथ इस वायरस को लें, अपनी ज़िंदगी महफूज बनाएं, दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाएं, अपने प्यारों की ज़िंदगी महफूज बनाएं। पाकिस्तान can fight back and Pakistan should fight back and Pakistan has to fight back against this pandemic, और इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर मिरेकल करेंगे। तो बहरहाल ये आपको कुछ मेजर स्लाइड्स मैंने दिखाई, यहाँ पर कुछ बाकी जो टेलीविज़न स्क्रीन्स होती हैं उन पे सिचुएशनल मॉनिटरिंग हो रही होती है, मीडिया के हवाले से देखा जा रहा होता है कि कोविड की प्रेजेंटेशन कैसी है, कोविड की कवरेज कैसी है। सो ये है जी आज का एजेंडा, जो आज की NCOC का मॉर्निंग का एजेंडा था। आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी रेट पहले डिस्कस किया गया है और डेटा क्या है क्रिटिकल आज का वो डिस्कस किया गया है। फिर अपडेट किया गया है कि जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जो ऑन फुट क्रॉसिंग है वो क्या है, यानी कि जो लोग वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान साइड से कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मॉनिटर किया जा सके कि पाकिस्तान की सरहदों से जो अंदर आने वाले लोग हैं कितने उसमें से वायरस पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। अपडेट किया गया है जी एंटीजन टेस्टिंग पे, कंडक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स इस वक्त ओवरफ्लो हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे पिम्स की सिचुएशन आज जैसे रिपोर्ट हो रही थी कि 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स पिम्स में जो हैं कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि ना सिर्फ एहतियात करना आपकी अपनी ज़िंदगियों के लिए अच्छा है बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि खुदा न खास्ता हेल्थ केयर का सिस्टम अगर ओवरफ्लो हो जाए, अगर जैम पैक्ड हो जाए, अगर आपके पास डॉक्टर्स ना हो, नर्सेस ना हो, हेल्थ केयर वर्कर्स ना हो, तो फिर सिचुएशन खुदा न खास्ता बहुत ख़राब हो सकती है। NCOC के इस कॉन्फ्रेंस सिचुएशन रूम में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल IT बोर्ड मोहम्मद हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी कंट्रीब्यूशन NCOC में पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, नेशनल IT बोर्ड का काम है IT सॉल्यूशंस डेवलप करना। तो इस कोविड के क्राइसिस के अंदर, जब ये कोविड क्राइसिस आया तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स मौजूद नहीं थे जो कि फुली हमें पूरे पाकिस्तान की पिक्चर दिखा सकें। तो ओवर द लास्ट 9 months माई टीम हैज़ डेवलप वेरियस सिस्टम्स जिनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ एनालिसिस, प्रेडिक्शंस और मुख्तलिफ मैपिंग हम कर सकें। उनमें से एक सिस्टम जो है आपके स्क्रीन पे सो डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारी कोविड की वेबसाइट है जिसको बेसिकली हमने लॉन्च किया था ताकि हमारे सारे सिटीजन्स को पता चल सके रियल टाइम में कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स हैं, कहाँ पे हैं, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या SOPs फॉलो करने चाहिए। तो यानी कि जिस वेबसाइट को हम अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि डेली केसेस कितने हैं, वो उस वेबसाइट के पीछे आप हैं, उसको डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में आप और आपकी टीम। जी मेरी टीम, जी बिल्कुल, इसमें मेरी टीम शामिल है। और ये वेबसाइट एक एग्जांपल ऑफ द सिस्टम्स वी हैव डेवलप्ड। हमने ऐसी बहुत सारी और सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं जिसमें इसकी ऐप भी अवेलेबल है मोबाइल्स के लिए। उसमें फिर हॉस्पिटल्स की इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बेड्स एंड वेंट्स को उसका सिस्टम अवेलेबल है। फिर ये बताने के लिए हमारे सिटीजन्स को कि कहाँ पे किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स और वेंट्स खाली हैं, वो वाला एप्लीकेशन। फिर जब हमने भी स्कूल्स ओपन किए थे तो ये ट्रैक करना कि किस स्कूल्स में कितने बच्चे या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए हमने एक एजुकेशन ऐप बनाई है। फिर अभी हम नेशनल इम्यूनाइजेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि वैक्सीनेशन
का जो हमारा एफर्ट है उसको हम कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं, उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर ट्रैक करना चाह रहे हैं। पंजाब क्योंकि अभी अगला जलसा होने जा रहा है ऑपोजिशन का, अगेन अ पॉलिटिकल थिंग, नॉट फॉर यू टू कमेंट बट आई एम जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट इन द मीन टाइम कि मुल्तान में जलसा होने जा रहा है और पंजाब के केसेस आपके सामने हैं। Exactly, I mean, see, here's the thing, NCOC is beyond political. हमने numbers हमने रख दिए हैं, and behind every number we have an analysis. It's not that कि ये एक number है 116506. We have complete data to back our numbers, right? And the breakdown of those numbers is right here, जो आपको बड़ी screen पे नजर आ रहा है. We have cases, then cases in the last 24 hours, deaths in the last 24 hours. Recovered, total test and critical for the last 24 hours as well. And then we have it broken down by province, we have it even broken down by district, by cities. तो ये वाली information सारी public को available है। सर उस तरफ मैं आपकी एक स्लाइड देख रही हूँ जो कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से है, स्मार्ट लॉकडाउन सिस्टम के हवाले से, सर ये कितनी इफेक्टिव है? जी ये भी हमारी है। एंड देखें, द इफेक्टिवनेस ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन इज really dependent upon how accurately that lockdown is enforced. हम तो एक जगह पे आपको specify कर सकते हैं कि इस शहर में इस जगह पे यहाँ पे we see a cluster of cases that should be locked down. Now that's dependent on the district administration. वो वहाँ पे कितना अच्छा lockdown करता है, कि कैसे उसे नाफिज करते हैं. We have the data, we can provide it to them. It's their decision, their prerogative. If they want to follow up on that or not, they are the ones who can decide. We can only provide them our analysis and share it. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर NITB मोहम्मद हारिस साहब हमें टाइम देने के लिए, और डेफिनेटली बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बड़ा डिटेल में। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो जनाब ये था NCOC से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्लोज करने से पहले एक बार फिर आपसे अपील करूंगी कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग, चाहे सिविलियन हों चाहे मिलिट्री साइड से हों, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सिर्फ उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब इस इंतहाई अहम कमरे से बाहर पाकिस्तान भर में सड़कों पे अवाम साथ देंगे। सो अवाम प्लीज़, अपील है आपसे बार बार NCOC की बिल्डिंग से हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिए और प्रॉपर पहनिए। आपने नाक भी ढांपना है, आपने मुंह भी ढांपना है, आपकी चिन तक ये पूरा मास्क जाना चाहिए। हाथ बार बार धोएं, पानी से धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइज़ करें, फासला रखें प्लीज़, इज्तिमात में बिल्कुल भी मत जाएं, गुरेज करें। हम सब मिलके एक एक फ़र्द जब इस एफ़र्ट को करेगा तो वो पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाब होगा। I'll see you coming week on Monday। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से खुद भी बचें, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। I'll see you on Monday। अल्लाह हाफ़िज़।